Class 10th Maths polynomial. What is polynomial? पोलिनोमियल क्या होता है? सबसे पहले हम इसे डिफाइन करेंगे. कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी अलजेब्रिक expression, any algebraic expression which have following three terms is called as polynomial. First is variable, second is constant, and third is operation. Any algebraic expression, that is polynomial, is the form of expression. You can also say that variables, constant and operation, these three things combined is called as the polynomial. Now discuss what is variable and what is constant. Everyone know that variable means change the value. For example, in the mathematics, variable is a, b, c and so on, x, y, z. It is called as variable. Constant, you know that digits from 0 to 9 and number formed from this digit is called as 1, 2, 23 and so on. These are the operation. There are the four basic operations in the mathematics: multiply, divide, plus, minus. These four variables, all three things contains in the polynomial. That means polynomial is algebraic expression which contains all three things. You know, like that the example of polynomial is that x plus 2 is a polynomial, x square plus 2, x cube plus 2 and 2x square plus 3x plus 4. These are the examples of polynomial. Now discuss the types of the polynomials. Types of the polynomials. Types of the polynomial. First is linear polynomial. Quadratic polynomial. And cubic polynomial and so on. There are the many types of this. What is linear polynomial? Linear polynomial is a polynomial if the variable of highest power is 1 is called as the linear polynomial. For example, x plus 2, it is a linear polynomial. 2x plus 4 is a linear polynomial and so on, because here the value of highest power, that is a variable of, that is x, is 1, that is a linear polynomial. Quadratic polynomial means 2x square plus 3x plus 4, it is a quadratic. X square plus 4 is a quadratic polynomial. Like that, cubic polynomial, x cube plus 8, 2x cube plus 3x square plus 4. These are called quadratic polynomial. And there are many types of the polynomial: fourth order, fifth order and nth order polynomial. Now discuss what is a linear polynomial and how can define the value of linear polynomial and how can get a graph of linear polynomial. First is linear polynomial. If the variable of
highest power of any polynomial is 1 is called as the linear polynomial. So the name of linear polynomial, if draw the graph of the linear polynomial, we get a straight line. For example, x plus 2 and x plus 4 and so on. If draw the graph of linear polynomial like that, this is the straight line which represent a linear polynomial. This is the graph of the linear polynomial. Okay, that means in the linear polynomial the graph touches the x-axis at one point only, not a more than 2 points. This is the point of x-axis, this is the point of x-axis. This graph also is there. If the graph is given and find this graph is a linear polynomial graph or any other, you can see and you can, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है. अगर 1 पॉइंट पे टच कर रहा है तो ये लीनियर पोलिनोमियल होगा, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा. तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि ग्राफ इसका कैसा होगा और कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग. अब हमारे पास एक चीज़ आता है कि ये जो पोलिनोमियल है सारा, इसका ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं और डिग्री होता क्या है इसका, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जब अभी मैंने बताया था कि पोलिनोमियल की जो कैटेगराइज है वो वेरिएबल के हाईएस्ट पावर पे है, तो डिग्री भी वैसे ही डिफाइन करते हैं हम लोग. हम लोग देखते हैं कि डिग्री क्या होता है इसका, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल. डिग्री ऑफ पोलिनोमियल the highest power of any the highest power of variable, the highest power of variable of any polynomial the highest power of variable of any polynomial is called as degree of polynomial. For example, x square पर degree is 1, x square plus 3x plus 4 degree is 2, x cube plus 4x square plus 3 degree is 3. These are the degree of the polynomial. That means we can easily find the degree of the polynomial. हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है. जैसे यहाँ पे x की वैल्यू हाईएस्ट क्या है, 1 है, डेट इज डिग्री 1 हो गया. x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर जो है 2 है, डेट इज डिग्री 2 हो गया. 3 है तो 3 हो गया. और इसी से हम ये भी बता सकते हैं कि ये ऑर्डर क्या है पोलिनोमियल. ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक और ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया. ये एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर टच करेगा, ये 2 पॉइंट पे करेगा, ये 3 पे करेगा. इसी तरह जितने पॉइंट पर टच करेगा उसी ऑर्डर का होगा और उतनी ही उसकी वैल्यू भी निकलेगी. ये हमसे पता चलता है यहाँ पे कि हम जब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो लीनियर पोलिनोमियल में एक्स की वैल्यू 1 आएगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एक्स की वैल्यू 2 आएगी. आइदर वो रियल हो, इमेजिनरी हो, कुछ भी हो, एग्जिस्ट कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, लेकिन आएगी 2 वैल्यू जरूर. यहाँ पे जो है एक्स की वैल्यू 3 आएगी. यानी जिस ऑर्डर का इक्वेशन होगा उतना ही x की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है. यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर में वो लीनियर पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे कि x की वैल्यू को कैसे निकालते हैं. अब जितनी भी यहाँ पे आपने पोलिनोमियल देखा है वो सब का सब 1 वेरिएबल पोलिनोमियल है. अब आपको 2 वेरिएबल का भी आएगा, 3 वेरिएबल का आएगा, तो ये सारा डिस्कस करना है. हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके अंदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं लीनियर पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या 1 वेरिएबल पोलिनोमियल या 2 वेरिएबल पोलिनोमियल, जितने भी होते हैं इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे. अब हम लोगों को इतने टॉपिक से ये आइडिया हो गया कि पोलिनोमियल होता क्या है, तो हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं. यहाँ पे एनसीईआरटी के, यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी भी डिस्कस करेंगे और अदर क्वेश्चन भी जो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जो हाईएस्ट टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उसको हम चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे. हमेशा हर चैप्टर खत्म करने के बाद कुछ क्वेश्चन अदर बुक से लेंगे और फिर उसके बाद जो है बोर्ड लेवल के क्वेश्चन इसको डिस्कस करेंगे. तो अभी हम लोग एनसीईआरटी में आते हैं. एक्सरसाइज
1.1। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर इसी चीज़ को देखा गया है कि कैसे जो है हम यहाँ पे दूसरे मतलब वैल्यू को निकाल सकते हैं कि कितनी किसकी वैल्यू होगी, वो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला जो यहाँ एक्सरसाइज 1.1 नहीं, ये सेकेंड चैप्टर है, तो एक्सरसाइज 2.1 होगा। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में लिख लिया, क्वेश्चन में द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px इन द फिगर 2.1, नीचे फिगर है बिलो, फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। यहाँ पे एक चीज़ का डिस्कस करना जरूरी है कि जीरोस क्या होता है या उसकी वैल्यू क्या होती है। ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि जहाँ पे भी जो आप x की वैल्यू या y की वैल्यू यानी जो भी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं वो जीरोस कहलाता है, या वो रूट्स कहलाता है, या वैल्यू कहलाता है। कुछ भी नाम दे सकते हैं, जीरोस, रूट्स, वैल्यू, कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं उसके अंदर में। तो आपको यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर में कि कैसे आप जो है वैल्यू को निकालेंगे। ग्राफ दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन और ग्राफ है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y is equal to px in figure 2.10 below for some polynomial px. Find the number of zeros. Find the number of zeros of px in each case. कई सारे क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कितने जीरो हैं। यानी पहला क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल है, ये आपका ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे आपके बुक के अंदर में है, ये आपका x है, x डैश है, ये y है, y डैश है। ग्राफ इस तरह बनाया गया है और इसमें बताया गया है कि नंबर ऑफ जीरोस का, मैंने पहले ही बताया था, आप बहुत आसानी से नंबर ऑफ जीरोस को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी के बेस पे हम निकालेंगे। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं सारा कि उसका ग्राफ कैसे बना हुआ है और क्या है उसके अंदर में। आपका ये ग्राफ इस तरह का है, इसी तरह जो है ऊपर नोट कर लिया होगा आपने। ऊपर में ग्राफ बना लेता हूँ, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में ग्राफ इस तरह का है आपका। ये x है, ये x डैश है, y है, y डैश है। फोर्थ ग्राफ आपका दिया हुआ है, वो इस तरह का है। ये सारे ग्राफ से आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। जीरोस मीन्स वैल्यू, यानी x की वैल्यू इसमें कितनी आएगी ये हमें कैलकुलेट करना है, वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। आपको ये ध्यान रखना होगा हमेशा कि जीरोस जो है वो वेरिएबल्स को ही कहते हैं। उसकी जो वैल्यू निकलेगी आइदर बॉडियल भी हो सकती है, एग्जिस्ट भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। ये सब हमें ध्यान में रखना होगा। एंड 6 एंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ग्राफ यहाँ टच करके जा रहा है, फिर यहाँ टच करके यूं चला गया है। That means in the first case, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे आपके कितने हो जाएंगे, यानी वैल्यू कितनी होगी। एक्स एक्सिस को ये एक भी बार टच नहीं कर रहा है, ये वाई एक्सिस के लिए, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस यानी एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी यहाँ पे। तो आपका जो ये आंसर होगा पहले केसेस के लिए, आंसर जो होगा आपका वो जीरोस हो जाएगा। पहले में जीरो होगा, दूसरे के अंदर में एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, यानी यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे तीसरा जो आपका ग्राफ यहाँ पे जो दिया गया है इसके अंदर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3, 3 जगह टच कर रहा है। फोर्थ में एक भी नहीं कर रहा है तो यहाँ पे 2 जगह कर रहा है, 1 और 2 तो 2 हो जाएगी यहाँ पे। फिफ्थ में देखिए क्या कर रहा है 1 2 3 4, 4 जगह कर रहा है, मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा यानी x की वैल्यू यानी नंबर ऑफ जीरोस 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 2
3, 3 जगह कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे। तो ये आपके पास पहला एक्सरसाइज था जिसके अंदर आपको ये देखना था कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके अंदर में, यानी एक्स की वैल्यू कितनी होगी। फर्स्ट केसेस में आपका 0 यानी 1 भी नहीं होगी, सेकंड केसेस में आपके 1 होंगे क्योंकि एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, थर्ड केसेस में 1 2 3 3 जीरोस हो जाएंगे, फोर्थ केसेस में 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएंगे और यहाँ पे 1 2 3 हो जाएंगे। इस तरह आपका फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गया यहाँ से। कि फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर में ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई है जीरोस के बारे में। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज। ये तो बहुत ईजी था, इसके अंदर में कुछ करना नहीं था हमें, जस्ट इंट्रोडक्शन दिया हुआ था पॉलिनोमियल का, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लेक्चर के अंदर, उसके अंदर हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स में जीरोस का क्या रोल है, जीरोस और कोफिशिएंट कहते किसको हैं, और क्या उसका जनरल फॉर्म होता है लीनियर पॉलिनोमियल का या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या जनरल फॉर्म होता है, उसके बारे में हम यहाँ से डिस्कस करेंगे।